A very warm and pleasant good morning to all of you. Today we are in the progress of the new session of our training skills. So from today we are moving to the new process of our training session, and today I congratulate each and every one of you for being present over here to attend a training which is based on the beautiful session. This is the topic of today for the training is 21st century skills. So as the CBC in-house training is in progress, we have to start with the training with our resource person, Mr. Dharmendra sir, and for that I would like to congratulate each and every person who are present over here for attending this training. I firstly invite our director sir, our principal ma'am, our manager sir, our teaching and the non-teaching staff, especially our few faculties who are helping in this in-house training a lot. I would like to congratulate them because it is because of their help that I am the SCNC of Girls International Training School, Kumar Roshan, is able to complete this training on time. So with this, all this progress, as we have to start this in-house training, the topic that we are seeing for today is 21st century skill. As we are knowing that after with time immortal, education has progressing a lot with time, and education is not only progressing, it is being enhanced by different scientific methods, it is being enhanced by different new kinds of progress things, and for that I am very much thankful to all the people who are present over here and who had made this training effective. For them, it is easy for us to create a 21st century skill, because nowadays students are not only taught to study with the books, but from the corona period or after the corona period, we have enhanced the teaching materials. We have taken our teaching to a level where students could gain, where students could learn, or where education could enhance the ability within them. So for that things, we are encouraging the students to learn more and more things. We are encouraging the students to gain and more things. We are just enabling the students to get what the process, what the things they should know. So for that, and to explain more about those things, we are having the resource person, Mr. Dharmendra sir, who is the PGT, and I invite Mr. Dharmendra sir to come to the dais and explain about the topic to all of you easily in a very beautiful manner. So just concentrate and listen to Mr. Dharmendra sir. Thank you and have a nice day. Thank you. Sir, stage is over. I, Dharmendra Prasad Singh, ID number 1409330, your
short person पत्थर so पत्थर to take training on the topic 21st century skill अर्थात 21वीं सदी के कौशल। गुड मॉर्निंग टू द प्रिंसिपल मैम, आवर मैनेजर सर and HTLC sir and all teachers, I will come you all। आज मैं आप लोग के बीच 21वीं सदी के कौशल टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं आज विवरण देना चाह रहा हूँ। 21वीं सदी के कौशल में कौशल, क्षमताएं और सीखने की विधियां शामिल हैं, जिन्हें 21वीं सदी के समाज और कार्यस्थलों में सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है। यह एक तेजी से बदलते डिजिटल समाज में सफलता हासिल करने का तथ्य है तथा छात्रों को तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल पर केंद्रित एक बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। इसके माध्यम से बच्चे को उत्साहित कर आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके माध्यम से बच्चे कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। जीवन कौशल का अर्थ होता है अपने जीवन को और सरल बनाना, सहज बनाना या अपने जीवन को ऊंची की ओर ले जाना। यह सीखने की चाहत है। इससे हम नए नए चीजों को सीखते हैं और हम दूसरों को बीच इसे बताते हैं, जिससे दूसरों का भी विकास होता है। जीवन कौशल यह एक सीखने की चाहत है, अनुकूलित तथा सकारात्मक। यह एक व्यवहार है, वे योजनाएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों के लिए अति आवश्यक है। इनके तरीकों को अपनाने से बच्चे जल्द विकास कर जाते हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनके सुधार भी इससे किए जा सकते हैं। जीवन कौशल हमारे बारे में महसूस करने के तरीके हैं। जिस तरह से दूसरे हमें अनुभव करते हैं, वे प्रभावित कर सकते हैं। इनमें 10 मुख्य कौशल हैं, जिनमें 3 समान श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है चिंतन कौशल, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा है संवेगात्मक कौशल। तो हम सबसे पहले चिंतन कौशल के बारे में हम विवरण करने जा रहे हैं। चिंतन कौशल क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी वर्तमान या भविष्य की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। चिंतन किसी भी समस्या को खोज कर समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने में कुछ न कुछ चिंतन उत्पन्न होता है और उस चिंतन को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय लगाना पड़ता है और उसे खोज कर समाधान करने
प्रयत्न करते हैं। यह किसी भी व्यक्ति की सहायता के साथ हो सकता है या किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करनी पड़ती है। चिंतन की विशेषताएं भी होती हैं। चिंतन की विशेषताएं में पहला विशेषताएं होती है, चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है। बिना चिंतन का कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण होते हैं चिंतन करने की। दूसरा है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी चिंतन से तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे दूर करने के लिए वो अपने आप प्रक्रिया को खोजते हैं, नई तकनीकों को खोजते हैं जिससे सावधान करते हैं। तीसरा है, चिंतन किसी वर्तमान समय को हल करने को प्रयास करती है। चिंतन जो होता है वह वर्तमान समय में तत्काल जल्द से जल्द हल करने के लिए कोशिश करता है कि हमारा समस्या जितना जल्द निदान हो जाए। चिंतन के दौरान किसी भी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करते हैं। 5 में चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है। कोई भी समस्या उत्पन्न होता है उसमें चिंतन उत्पन्न होती है, उससे समाधान किया जाता है। कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं है जिसमें चिंतन नहीं होती है और उसका समाधान नहीं होता। इसलिए चिंतन किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमें समाधान प्रस्तुत करती है। अब दूसरा पॉइंट में है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल व्यवहार का एक सेट है। हम लोग के बीच बार बार हमेशा कुछ न कुछ प्रभावित किसी न किसी रूप में होते रहते हैं। उसे दूर करना हम लोग का कर्तव्य होता है। उसमें भी चिंतन होती है जो हमें प्रभावी ढंग से और संतोषजनक रूप से दूसरों से बातचीत करने तथा संबंधित करने की अनुमति देता है। बुद्धिमान व्यक्ति भावनात्मक रूप से 4 क्षेत्रों में क्षमता रखता है, जिसमें पहला क्षेत्र है भावनाओं की पहचान करना। किसी भी व्यक्ति की भावना क्या है उसकी पहचान करना पहला है। अगर हम किसी व्यक्ति की भावना को पहचान कर लेते हैं तो उसके अनुसार हम कार्य करने में संभव होते हैं। दूसरा है भावनाओं का उपयोग करना, भावनाओं को समझाना। हम जब किसी की भावना को हम पहचान लेते हैं तो उसकी भावना का उपयोग करने में लगे रहते हैं, उसकी पहचान कर और उसकी भावना के प्रति हम समझाते हैं। चौथा पॉइंट है भावनाओं को विनियमित करना। इनके 4 प्रकार भी होते हैं, जिसमें पहला है बुनियादी कौशल। बुनियादी कौशल का मतलब होता है सुनना, बातचीत शुरू करना। हम किसी भी व्यक्ति की बात को पहले सुनते हैं, उसके बाद उनके बीच अपने बात को रखते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए शुरू कर देते हैं। एक प्रश्न पूछना, धन्यवाद देना और अपनों को अन्य लोगों के परिचय देना, ये हम लोग का कर्तव्य होता है। दूसरा है जटिल कौशल। जटिल कौशल दूसरे प्रकार के सामाजिक कौशलों के विकास करने के लिए पहले सीखना अति आवश्यक है। जब तक हम किसी चीज को नहीं सीखते हैं, किसी बारे में नहीं सीखते हैं, तो हम किसी को बता नहीं सकते। तो पहले किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सीखना चाहिए और हम सीखते हैं और सीखने के बाद उस कार्य को करते हैं। जब कार्य पूर्ण रूप से सफल हो जाता है तो हम दूसरों को भी सिखाते हैं।
सहानुभूति प्रकट करती है। किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है तो उस समय व्यक्ति उनके पास सहानुभूति प्रकट करने के लिए जाते हैं और तरह तरह की बातें कर समझाकर सहानुभूति प्रकट करती है। चौथा पॉइंट है मुखरता। सामाजिक रिश्तों में सम्मान के साथ खुद का बचाव करना, अपनी जरूरतों के बारे में बात करना, संवाद करना, सुनना, अधिकारों को दावा करना और दूसरों की देखभाल करना मेरा कौशल है। यानी कि कभी भी ऐसा समय आता है जिसमें किसी को साथ देने की जरूरत होती है, अर्थात हम कहीं यात्रा के दौरे पर जा रहे हैं और हमारे बीच किसी की घटनाएं वगैरह हो जाती है तो हमसे रहा नहीं जाता, उनकी मदद करनी चाहिए और उस समय हम लोग मदद करते हैं। या हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं तो जो हमारी घटना को देखते हैं वे मेरे साथ हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो एक सामाजिक रिश्ता है, एक दूसरों को हेल्प करना, मदद करना और खुद का बचाव करना, खुद को बचाव करते हुए दूसरों की मदद करना और अपनी जरूरतों के बारे में बात करना, ये सब मुखरता के प्रति आते हैं। अब है सामाजिक कौशल, ये विशेषताएं। सामाजिक कौशल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे लर्निंग स्किल है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले सीखना चाहते हैं, सीखना चाहिए, इसलिए सीखते हैं। पहला है प्रशिक्षित और बेहतर होने में सक्षम। हमें किसी भी कार्य करने के लिए पहले प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी सीखना चाहिए और बेहतर होने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब किसी चीज को सीखे तो अच्छी तरह से सीखे, अधूरा न सीखे। दूसरा है वे व्यवहार के कठोर पैटर्न नहीं, यानी कि अपने व्यवहार को कठोर रूप में प्रकट नहीं करना, उसके सरल रूप में प्रकट करना। तीसरा है दूसरे का बचाव करने की क्षमता रखना, यानी कि अपने बचाव के साथ साथ दूसरों के भी बचाव करने की क्षमता रखना चाहिए। चौथा है शिकायतों एवं दावा करने में समानता रखती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखकर उसके बारे में शिकायत करना और सही में आप गलत है इस पर दावा करने का हमें अपना विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर कहता है गलती करते हुए भी कि हम ऐसा नहीं किए, ऐसा गलती नहीं हमसे हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं, तो इस पर हमें उनको दावा ठोकना है इस पर, और दावा ठोक कर, है ना, कहना है कि आपका गलत ये काम है, उसे रोकना है, उसे समझाना है, उसे अच्छे कामों पर लाना है। क्षमता रखती है। तीसरा पॉइंट है संवेदनात्मक कौशल। किसी भी कार्य को यदि व्यक्ति करता है तो स्वयं की भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की जरूरत होती है। हमारा अपना विचार और दूसरों के विचार वहां पर जब हो रहा है तो उसकी पहचानने की जरूरत होती है और नियंत्रण करने और प्रबंध करने की क्षमता को संदर्भित करती है। संवेदनात्मक कौशल को प्रभावित करने वाले कारक भी निम्नलिखित हैं। पहला है थकान। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें थकान ही महसूस होता है, तो हम उस थकान को देखते हुए किसी कार्य को करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। हमें किसी कार्य को करना है तो अपने
नेक्स्ट है मानसिक योग्यता और नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। अगर हमारी इच्छा है तभी हम दूसरों के बीच अपना इच्छा प्रकट कर सकते हैं। अभिलाषा है पारिवारिक अभिलाषा होती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी इच्छाएं होती हैं अच्छे काम करने की, अच्छे काम सिखाने की, अच्छे काम करने के लिए बताने की, है ना। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति को देखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय से भी छात्रों को शिक्षा मिलती है जिससे आगे विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक। शिक्षक के माध्यम से भी उनके सीखने के लिए मौका मिलते हैं। और इसके नेक्स्ट है माता पिता का दृष्टिकोण। इसमें माता पिता का भी दृष्टिकोण होता है। तो संवेगात्मक कौशल की भी विशेषताएं होती है। इनकी विशेषताएं होती हैं, पहला संवेगात्मक अनुभव किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी से संवेग होता है, संवेदन होती है। कोई न कोई प्राणी एक दूसरे के से संबंध रखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। बिना किसी के संबंध रखे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक जीवित प्राणी जो है उनका एक दूसरे के साथ संबंध रहता है। नेक्स्ट है एक ही संवेदन को अनेक प्रकार के उत्तेजनाओं से उत्पन्न किया जा सकता है। एक ही प्रकार के उत्तेजनाओं से उत्पन्न किया जा सकता है। संवेदनशीलता से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। 5 में संवेदन प्रत्याशीकरण का उत्पादन होते हैं। इसके अंतर्गत डर, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नाराज होना, जिज्ञासा, दुख, स्नेह, खुशी ऐसे संवेदनात्मक व्यवहार होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में देखे जाते हैं कि भय की भावना होती है, डर होती है, चिंता होती है, कभी कभी क्रोध की भावना भी हो जाती है किसी बात को लेकर। कभी कभी दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है तो ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाता है। एक दूसरे व्यक्ति का विकास को देखकर जलन उत्पन्न होता है। एक दूसरे व्यक्ति से नाराजगी उत्पन्न होता है। और कभी कभी देखा जाता है कि जिज्ञासा भी उत्पन्न होता है, यानी किसी चीज की जानने के बारे में जानने के लिए उनको जिज्ञासा होता है। वो कैसे बना, कैसे हुआ, कैसे दिखाया, है ना, कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे कार्य को किया जा सकता है। तो इसके लिए जिज्ञासा होता है। कभी कभी व्यक्ति के पास दुख प्रकट करने पर की उतावला हो जाते हैं, दुख की भावनाएं हो जाते हैं। और कभी कभी एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना हो जाती है। और कभी कभी एक दूसरे के प्रति खुशी की भावना भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे संवेगात्मक व्यवहार होते हैं। तो जीवन कौशल का भी कुछ महत्व होते हैं। जीवन कौशल युवाओं को अपने समुदायों में भागीदारी करने, निरंतर सीखने की प्रक्रिया से संलग्न होते हैं। स्वयं की रक्षा करने और स्वस्थ एवं सकारात्मक सामाजिक बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहलू होते हैं। तो बिना एक दूसरे को बताए हुए वे आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो सामाजिक बढ़ावा देना इसके अंतर्गत एक कौशल है, एक महत्व है, एक सकारात्मक पहलू है। हम इस प्रक्रिया के अंतर्गत इसे
नियंत्रण सीखने की प्रक्रिया से संलग्न करते हैं और स्वयं की रक्षा करते हैं और स्वस्थ एवं सकारात्मक सामाजिक बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पहलू का उपयोग करते हैं। जीवन कौशल के प्रकार भी अनेक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार से जीते हैं और जीने में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीवन कौशल के प्रकार के संबंध में हम नीचे इस प्रकार से विवरण करेंगे। पहला होते हैं संपर्क। जीवन कौशल में संपर्क का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई न कोई व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं। कोई भी विद्यार्थी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कोई भी शिक्षक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। बिना संपर्क का जीवन अधूरा है। तो किसी न किसी रूप में संपर्क में रहते हैं। क्योंकि बिना संबंध के किसी प्रकार का सुधार एवं देखभाल नहीं किया जा सकता। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए संपर्क की मदद होती है और संपर्क की मदद करती है और एक दूसरे के संपर्क के माध्यम के अनुसार ही वे आगे विकास करते हैं। दूसरा है पारस्परिक कौशल। दूसरा है पारस्परिक कौशल। पारस्परिक कौशल यानी कि एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार को रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार को प्रस्तुत कर उनकी बातों को समझते हैं और इस तरह से पारस्परिक कौशल जो है वो विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है सहानुभूति। जब हम दूसरे लोगों के बीच दुख से स्वयं दुखी होकर उसके प्रति दया का भाव, सहानुभूति कहलाते हैं। जब हम दूसरे के दुख से स्वयं दुखी होकर उसके प्रति दया का भाव अभिव्यक्त करते हैं तो वे सहानुभूति कहलाते हैं। हम हमेशा बात विचार करते हैं तो एक दूसरे के बीच अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, दूसरे के व्यवहार को अपने अधीन लेते हैं और देखते हैं और इस तरह के उनकी सहानुभूति प्रकट करते हैं। और सहानुभूति का मतलब है समान भावना प्रकट करना। सिर्फ दया दुख ही नहीं बल्कि क्रोध द्वेष घृणा उत्पन्न होना। जैसे जैसे हम देखने की कोशिश करते हैं अपने मित्र के दुश्मन के प्रति क्रोध घृणा तथा द्वेष व्यक्त कर मित्र के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। एक बंधन को संकट में फंसे देख अन्य शोर बंधन इकट्ठा को जब करते हैं तो कौवे के बीमार हो जाने पर सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक बंदर बीमार पड़ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाता है तो उनको तबीयत को देखते हुए सारे बंदर उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कौवे भी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनको देखकर बहुत से कौवे उनको बचाने की कोशिश करते हैं और वे उनको बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं और कौवे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सहानुभूति प्रकट करना। यदि हमारे समाज में किसी तरह दुर्घटनाएं होती है तो उनके पास जाकर उनको रोने से मना करते हैं, उनको हंसाने की कोशिश करते हैं और उनको
उसको इस बात पर ज्यादा गहरा सोचने के लिए मना करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आत्म जागरूकता। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म जागरूकता का होना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से सजग होकर अपने कार्यों में जागरूक रहते हैं तो उन्हें आत्म जागरूकता कहते हैं। जो व्यक्ति शिक्षक होता है वही जागरूक होता है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होते हैं वे जागरूक नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना अति आवश्यक है। बिना जागरूक हुए कोई भी कार्य नहीं हो सकते हैं। उन्हें जागरूक होने की जरूरत होती है जब शिक्षित होते हैं। वे सफल नहीं होंगे, अगर जागरूक नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए जागरूक होना अति आवश्यक है। बिना आत्मनिर्भर का किसी भी चीज का विकास असंभव है। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। तो इससे ये भी हमें ज्ञान हासिल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की अति आवश्यक है, आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है। और इसलिए यह प्रणाली सभी लोगों का आत्म जागरूकता होने का संकल्प कराता है और सभी लोगों को संकल्प लेने की अति आवश्यक है। नेक्स्ट है समस्या का सुलझना। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीकों से किसी समान विधि द्वारा उपयोग करना पड़ता है। बिना उपयोग किए हुए समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए भी शिक्षा की जरूरत होती है। समस्या समाधान अधिगमन के अंतर्गत जीवन में अनेक बोली नवीन समस्याओं के तरीकों का सीखना जरूरी होता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक विचार मंथन सूत्र है। बिना मंथन किए हुए किसी भी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है। उसके लिए कुछ मंथन कर नए नए तकनीकों की सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है निर्णय लेना। निर्णय लेना का अर्थ है किसी समस्या को आने पर उसे हल करने के लिए विचार विमर्श करना पहले होता है। हम इस समस्या को कैसे निदान करेंगे, इस समस्या को पर कैसे विचार करें कि वह निष्कर्ष पर आना संभव हो जाए। सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना पड़ता है कि कार्यों की समस्या को ठीक करने में कैसे मदद करें। निर्णय लेना आधुनिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है और इसके माध्यम से हम निर्णय लेकर किसी भी समस्या को हम निदान कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले विमर्श करने की आवश्यकता है। जब हम किसी बात पर विमर्श करते हैं तो उसका समाधान निकालते हैं और इस तरह से निर्णय लेकर हम किसी भी आधुनिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। नेक्स्ट है गहन सोच। आदमी के पास गहन सोच भी होता है। आदमी के पास गहन सोच भी होता है। तो अब मैं अपना विचार यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समाप्त करता हूँ और जो भी मैं बताया इसके संबंध में मुझे तपन सर जी से अनुरोध है कि आकर अपना
teachers and principal ma'am and director sir. सर ने अभी 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बताया. इट मीन्स कि सर ने भी जितनी बातों को बताया, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्नोलॉजी. इट मीन्स कि जो 21st सेंचुरी का जो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, इस समय पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो एजुकेशन का पूरा जो पैटर्न हो चुका है, पढ़ाने का तरीके में, बेस में, वो बहुत ही चेंजेस हुआ है. अगर हम एंशियंट टाइम या मिडिवल टाइम्स की बात करें तो उस समय उतना ज़्यादा स्किल डेवलप नहीं था. तो धीरे धीरे ये जो स्किल था, धीरे धीरे ये स्किल डेवलप हुआ है और समय के साथ ये जो स्किल है वो डेवलप होता जा रहा है. इट मीन्स कि 21st सेंचुरी स्किल में टोटल 3 स्किल्स हैं: लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स एंड लाइफ स्किल्स. लर्निंग स्किल्स में आपका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. इट मीन्स कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, या छात्र हो या किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, उसको क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए. गहन चिंतन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी विषय के प्रति. दूसरा है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता होनी चाहिए. अपनी सोच में, अपने विचार में एक रचनात्मकता होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान, कोई भी आदमी नए नए इन्वेंशन को सोच सके. अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले जाएं तो हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का खोज किया. तो इट मीन्स कि न्यूटन का कहानी ये है, वो जब बाग में बैठे थे तो उनके सर पर एप्पल गिरा. तो उन्होंने सोचा, उन्होंने थिंकिंग किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो इससे हमारा क्रिएटिविटी जगता है ना. इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि किसी के सर पर एप्पल नहीं गिरा होगा या एप्पल नहीं गिरा होगा, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं. वही चीज न्यूटन ने सोचना शुरू किया और वो आगे जाकर साइंटिस्ट बने, बहुत महान व्यक्ति बने. उन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और 3 लॉ भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. इसके बाद है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन मीन्स कि हम जो एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, कोई व्यक्ति जब ग्रुप में साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी काम हो, कोई भी वर्क हो ना, या किसी देश को आगे करना है, किसी इकोनॉमी को आगे करना है, तो साथ मिलकर काम करना चाहिए. चौथा है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स कि जितने भी तरह की बातचीत है आपस में होनी चाहिए, है ना. कम्युनिकेशन एकदम सामने से होनी चाहिए. इसके बाद है लिटरेसी स्किल. लिटरेसी स्किल्स में है इंफॉर्मेशन. इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन जो है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो हमें एक दूसरे से साझा करनी चाहिए. सेकेंड लिटरेसी स्किल्स का रोल है मीडिया. इट मीन्स कि अभी के समय में 21st सेंचुरी में जो मीडिया है, मीडिया के अलग अलग जो माध्यम हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो ये जो मीडिया सारे हैं, ये हमारे लाइफ के स्किल्स को ना, लाइफ के स्किल्स को या किसी व्यक्ति की स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करती है. और ये हमें वर्ल्ड से, इट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से हमको कनेक्टेड रखती है. इसके बाद है टेक्नोलॉजी. इट मीन्स कि तकनीकी आने से, टेक्नोलॉजी आने से भारत में, इंडिया में या कोई भी कंट्री वर्ल्ड में बहुत
लीडरशिप हर एक इंसान के अंदर एक लीडरशिप को क्वालिटी होना चाहिए, ताकि आगे आकर उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी बात को हम सब लीड कर सके। तीसरा है इनिशिएटिव। इट मीन्स कि पहल करना, कि कोई भी बात को हम सब आगे आकर उस बात को रखना, उस बात को साबित करना। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी। इट मीन्स कि हमारे जो स्किल्स है, हमारे अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको हम अपने कितना से कितना ज़्यादा हम अपने योगदान इस वर्ल्ड में, इस संसार में या अपने देश को दे सके। चौथा है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मीन्स कि सामाजिक जो कौशल है, साथ मिलकर काम करने का और सबको समाज में लेकर चलने का। तो ये कुछ 21st सेंचुरी के स्किल्स थे जिनके बारे में हमारे सर ने अभी बहुत सारे वो विस्तार में बताया। तो इट मीन्स कि इस 21st सेंचुरी स्किल्स में जो एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है, और हम सबको ये प्रयास करने चाहिए कि जितने भी सारे आजकल जो स्किल्स हैं 21st सेंचुरी में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, थिंकिंग करके, वो जितने तरह के भी स्किल्स है वो सभी उभर कर सामने आते हैं। तो इससे हम सब यही सीखते हैं जितने भी 21st सेंचुरी में स्किल्स है वो सभी को वो आगे आने चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम्स में, तो उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी ना। पॉपुलेशन कम होने के साथ साथ उतना टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम पीरियड समय बढ़ा, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा और लोग भी बढ़े, तो धीरे धीरे करके ये सब जितने जो स्किल्स थे ये उभर कर सामने आए। मतलब 21st सेंचुरी का ओवरऑल जिस निकाला है, इसका मतलब यही है कि इस 21वीं सदी में हम कितना ज़्यादा स्किल यूज़ करके, ह्यूमन अपने रिसोर्स का कितना ज़्यादा यूज़ करके, ह्यूमन रिसोर्स अपने यूज़ करके कितना ज़्यादा उस स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। बहुत अब इसके बाद आगे जो सर जो है वो इसका विस्तार में बताएंगे। सो थैंक यू तपन सर, जो भी आप बताएं इसके संबंध में बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। 2 मिनट और बोलिए ना। तो अब मैं गहन सोच के बारे में मैंने बताया जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत बड़ा सपना होता है। हमारा सपना जितना बड़ा होता है, हमारी सोच उतना ही अधिक गहरी होनी चाहती है। जितना हमें सपना होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसके प्रति उतना ही गहरी सोच बनानी पड़ती है। अब हम अरुण सर अब हम कुछ वीडियो इसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। One day, Mrs. Stillwell's second grade class was hard at work discovering the science behind the number of sunlight, when suddenly, it was their teacher. An exciting entrance like that could only mean one thing. A new project? Asked Lucy. I've just come from a very important meeting at City Hall, she explained. The city is spending too much money on electricity. And since you're the brightest bulbs I know, the mayor wants our help to design a new light bulb for the city. One that costs less to use. Ooh, this was a good one. For Elena, a bold and critical thinker, an inspiring vision came immediately to mind. Jose took his time to imagine a creative solution.
where they present their ideas for harnessing the energy of the sun to power all the city's light bulbs. A job well done. With innovation, collaboration, and creative thinking, the world lights up with limitless possibility. नमस्कार 21वीं सदी की स्किल्स। नमस्कार 21वीं सदी की स्किल्स एक ऐसी सदी जिसमें हम सब जी रहे हैं, जिसमें हमारे सामने बहुत सारी नई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में अगर बात करें तो स्पेशली टीचर्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के और एक पेरेंट्स होते हुए भी हम बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। एज अ स्टूडेंट इस टाइम तक में जिसमें हमारा समझते हैं हमें सोसाइटी में, पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या है, कौन है सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, हु इज। सो आंसर आपको नीचे से लिखा भी आया है, वो फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ा हुआ है। और जितनी देर मैंने बोलने में लगे उतनी देर आपने सोच भी लिया होगा, आंसर भी सोच लिया होगा। यस, इट इज सो बिकॉज ऑल एक्शंस आर टेकन बाय एन डैश। व्हाट डैश? फॉर अनदर और फॉर सेल्फ। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्या है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज? सो वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज हम हैं, इंडिविजुअल, मैं स्वयं में, मैं खुद से क्या कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट क्या कर रहा हूँ, एज अ टीचर क्या कर रहा हूँ, एज अ पेरेंट में क्या कर रहा हूँ। सब कुछ डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मैं ही फिर बन जाता हूँ सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। मैं ही फिर सोसाइटी को, नेशन को, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आज के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी का इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो पार्टी को भी एक्टिविटीज का हिस्सा है, सेंटर ऑफ पार्टीज है, सेंटर ऑफ नेशन है, हमारे पूरे देश को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इवन आज पूरे वर्ल्ड को भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी की एजुकेशन और शुरुआत एक ऐसे क्वेश्चन से कि सब कुछ, सारा काम किस पर होना है? मुझ पर होना है। सारी इंप्लीमेंटेशन किस पर होनी है? मुझ पर होनी है। क्योंकि मैं ही खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज पर हूं। सो लेट्स स्टार्ट कि हम एक नया जनरेशन, एक नया ट्रेंड, और वो भी नया ट्रेंड अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति को साथ जोड़ के रखते हुए और अपने आप को हमें ग्लोबल लेवल पर स्टैंड करना है। इस सब को लेकर के, इस मोटिव को लेकर के आगे बढ़ते हैं। The 21st century skills are the skills that are required by an individual. Holistic development. बात हो रही है holistic, सारा का सारा डेवलपमेंट, केवल एक पोर्शन पर नहीं, एकेडमिक नहीं, मेरे साथ में मेरा फिजिकल भी, मेंटल भी है। तो एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है और मेंटली भी स्ट्रांग होना है। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका मन अगर स्वस्थ है तो आप कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचेंगे, आपका फिजिकल करने में भी मन लगेगा, आपको एकेडमिक पढ़ाई करने में भी मन लगेगी। सो मेन मोटो हो गया आपका मेंटल डेवलपमेंट। और अब मैं 21वीं सदी के कौशल के संबंध में रोशन सर को बुलाना चाहूंगा, अपना विचार विमर्श करेंगे। Okay. So, thank you, Dharmendra sir, for this wonderful training. I would like each and everyone for this successful training which we have had today. So, in few minutes, we are providing you the assignments. So, all of you just go through the assignment and try to complete it within the time. As you all know that with time immortal, the training is in progress and it is very achievable that we have completed more than half of the trainings before time. So this is one of the greatest achievements which we have done in this session. So I think this training is not only for the training purpose, it is really enhancing the abilities of the people. So finally, I would like to thank each and every of you for coming this talk for this meeting and attending the training of today. Now we are distributing some snacks
and also we are providing you the assignments. So just have your snacks and later you will complete the assignments and try to submit it to the manager sir. Okay? So for this I would like to thank each and every of you. Thank you and have a nice day. उससे फिर आपके दोनों डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं और यही डेवलपमेंट जब तीनों तरीके के डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा आपका, तो फिर आप अपनी सोसाइटी, अपने नेशन और पूरे देश और पूरे विश्व के लिए भी आप कुछ ना कुछ योगदान कर पाएंगे। तो 21वीं सदी की शिक्षा, 21वीं सदी की स्किल एक ऐसी स्किल जो मेरा संपूर्ण विकास करे, जो मुझे पूरे में पूर्ण करे। Empowering our students with these skills is another challenging task. एज ए टीचर यहाँ पर ये बात आई है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरीके से उन्हें पावरफुल बनाना है